Hello dear students, good evening to one and all. Students, I welcome you back once again to Web Master. See students, we are discussing biomolecules. In biomolecules, so far what we have seen, analysis of chemical composition we have seen student, types of biomolecules, biomacromolecules, biomicromolecules we have seen, and apart from that, primary metabolites, secondary metabolites we have seen students. And in previous class, amino acids we have finished, and in today's session we are going to talk about another most important biomolecule, that is lipids students. And you know what lipids are. Lipids comes under, lipids can be seen in acid insoluble fraction student, that is also called what, retentate. And lipids molecular weight is less than 800 Daltons. So, and these are found in what? These are found in acid insoluble fraction, that is retentate. So lipids are, they are not strictly biomacromolecule students, right? They are conditional macromolecules, you can say. Otherwise, as far as molecular weight is concerned, molecular weight point of view, lipids are biomicromolecule students, right? And since they are found in retentate or acid insoluble fraction, you can consider them as what, macromolecules. So students, let us discuss what exactly lipids are. See, lipids are water insoluble students. Lipids are water insoluble, you need to remember, and these are again organic compounds, biomolecules you can say. And lipids are made up of carbon, hydrogen and oxygen student, right? You can clearly see lipids contain carbon, hydrogen, oxygen. And here one thing you need to remember student, oxygen atoms are very less as compared to carbohydrates, proteins, right student, right? So in lipids, oxygen atoms are very less in number student, right? See, I have shown here lipids, you can see some solid lipids I have shown, some liquid are there dear students, liquid lipids, right? So let us see classification of lipid students, right? See, lipids are broadly categorized into types of lipids. You see classification of lipids, you can see lipids are broadly categorized into three categories students. Simple lipids, right? What are simple lipids? We have to see in detail. Next you see compound lipids students, right? We will see in detail what exactly compound lipids are and their examples. And third category of lipids is derived lipid students. So all you need to remember, lipids are broadly classified into three categories students, right? So what are those three types of lipids? Simple lipids, compound lipid students and derived lipids. Now you see, so classification, further classification of lipids, just I simplified, you see lipids students, right? Lipids are classified into how many types? We have seen previously three types. Simple lipids, one. Second category of lipids, compound lipid students, right? So compound lipids are also called what, conjugated lipids you can call them. And third category of lipids देखिए यहाँ पर derived lipids है students, right? So lipids को कितने categories में हमने divide किया है students? Lipids are broadly classified into three categories. कौन से categories है बताइए? एक simple lipids है students, फिर बाद में compound lipids है और derived lipids है. अभी हमको ये simple lipids क्या है, compound lipids क्या है, derived lipids क्या है, इसके बारे में हमको डिटेल में डिस्कस करना है स्टूडेंट्स. एनसीईआरटी में बहुत ही ब्रीफ में इनके बारे में दिया हुआ है, हमको थोड़ा सा डीप में इनके बारे में डिस्कस करना है स्टूडेंट्स, राइट. चलो अब हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स सिंपल लिपिड्स के बारे में. ये सिंपल लिपिड्स है क्या, फिर देखिए सिंपल लिपिड्स आर फर्दर क्लासिफाइड डियर स्टूडेंट्स, राइट. आप देख सकते हो यहाँ पर न्यूट्रल आर ट्रू फैट्स, देखिए स्टूडेंट्स वैक्सेस, राइट, ये दो इंपॉर्टेंट है, और क्यूटिन और सुबरिन डियर स्टूडेंट्स, राइट. क्यूटिन और सुबरिन ये प्लांट्स में जनरली पाया जाता है, वैक्सेस एनिमल में पाए जाते हैं स्टूडेंट्स, राइट. यहाँ पर देखिए न्यूट्रल फैट्स आर ट्रू फैट्स. सिंपल लिपिड्स को फर्दर क्लासीफाई किया गया है, ट्रू फैट्स या न्यूट्रल लिपिड्स कह सकते हो आप. दिस इज इंपॉर्टेंट स्टूडेंट. वैक्सेस, क्यूटिन, सुबरिन ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इनको
राइट, अवॉइड भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स, राइट। देखिए एज फार एज कॉन्जुगेटेड लिपिड्स आर कंसर्न या कंपाउंड लिपिड्स आर कंसर्न स्टूडेंट्स, कंपाउंड लिपिड्स कॉन्जुगेटेड लिपिड्स को फर्दर क्लासीफाई किया गया, आप देख सकते हो यहाँ पर, राइट। कौन सा कंपोनेंट रहता है लिपिड के अलावा, अगर लिपिड में कोई दूसरा कंपोनेंट है तो अकॉर्डिंगली कंपाउंड लिपिड्स को फर्दर क्लासीफाई किया गया स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो फास्फोलिपिड से, ग्लाइकोलिपिड से, लाइपोप्रोटीन से, क्रोमोलिपिड से स्टूडेंट्स, राइट। ये हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। और थर्ड कैटेगरी ऑफ लिपिड से डिराइव्ड लिपिड स्टूडेंट, राइट। चलो हम अब डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स विद सिंपल लिपिड्स। आप देख सकते हो स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ लिपिड्स हमने देख लिया यहाँ पर ब्रीफ में। फर्दर लिपिड्स आर क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी टाइप्स, 3 टाइप्स, सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स, डिराइव्ड लिपिड्स। अब एक एक के बारे में हमको डिटेल में डिस्कस करना है स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, आपको एग्जाम्पल्स याद रखना होगा स्टूडेंट्स। चलो देखते हैं सिंपल लिपिड्स है क्या। आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, देखिए सिंपल लिपिड्स एक्चुअली है क्या देखेंगे। देखिए सिंपल लिपिड्स आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद वेरियस अल्कोहल स्टूडेंट्स, आपको ये याद रखना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिंपल लिपिड्स क्या है, एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड से याद रखिए, एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद वेरियस अल्कोहल स्टूडेंट, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है, एस्टरिफिकेशन, राइट। फैटी एसिड जो है ना स्टूडेंट्स, फैटी एसिड अल्कोहल के साथ, राइट, उसका एस्टरिफिकेशन होगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा स्टूडेंट जब रिएक्शन होगा और एस्टर बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, एस्टरिफिकेशन कहते हैं स्टूडेंट्स। जब भी आपका सामना सिंपल लिपिड से होता है तो सिंपल लिपिड्स को आप किस तरह से डिफाइन करोगे स्टूडेंट्स। सिंपल लिपिड्स आर नथिंग बट व्हाट, यू नो, दीज आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स, एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद व्हाट, वेरियस काइंड्स ऑफ अल्कोहल स्टूडेंट। ये आप याद रखिए, बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स, राइट। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। चलो स्टूडेंट्स, और हम कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स देखते हैं यहाँ पर। देखिए जो सिंपल लिपिड्स है ना स्टूडेंट्स, प्रीवियसली हमने देखा था सिंपल लिपिड्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू न्यूट्रल फैट्स, राइट। सो यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, देखिए आप देख सकते हो, न्यूट्रल फैट्स आर ट्रू फैट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसके ऊपर ही आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा यहाँ पर। आप देख सकते हो स्टूडेंट्स यहाँ पर सिंपल लिपिड्स में न्यूट्रल फैट्स, राइट, या इनको हम क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स, ट्रू फैट्स भी कह सकते हैं, याद रखिए। अब देखिए ये तो जो भी सिंपल लिपिड्स है वो क्या है, एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद अल्कोहल स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब क्या है, न्यूट्रल फैट्स में या ट्रू लिपिड्स में भी क्या होगा, फैटी एसिड भी होगा और अल्कोहल भी होगा स्टूडेंट, राइट। यहाँ पर फैटी एसिड कोई भी फैटी एसिड हो सकता है स्टूडेंट्स। जहाँ तक अल्कोहल की बात है, अल्कोहल कभी भी न्यूट्रल लिपिड्स में, ट्रू लिपिड्स में ग्लिसरॉल होगा स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पर इसलिए मैंने मेंशन किया है, दीज आर एस्टर्स, ये तो कॉमन है, दीज आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स। लेकिन यहाँ पर अल्कोहल के प्लेस में मैंने ग्लिसरॉल लगाया स्टूडेंट, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। सो जब हम सिंपल लिपिड्स के बारे में डिस्कस करते हैं तो यहाँ पर क्या कहेंगे, एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद वेरियस अल्कोहल्स कहेंगे स्टूडेंट, राइट। जब हम न्यूट्रल फैट्स या ट्रू फैट्स का हम जब जिक्र करते हैं स्टूडेंट्स, तो हमको क्या करना है, फैटी एसिड तो एज इट इज रखना है, लेकिन ये अल्कोहल के प्लेस में हमको ग्लिसरॉल रखना है स्टूडेंट, याद रखिए, बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स, राइट। अभी मेरे ख्याल से आपको सिंपल लिपिड में ट्राइग्लिसराइड या न्यूट्रल फैट्स क्या है समझ में आएगा स्टूडेंट्स। ट्राइग्लिसराइड्स या न्यूट्रल फैट्स जो भी है ना स्टूडेंट्स, वो क्या है, एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड से विद ग्लिसरॉल है, याद रखेंगे स्टूडेंट। और ये न्यूट्रल फैट्स को ही हम ग्लिसराइड्स भी कहते हैं। क्यों ग्लिसराइड्स कहते हैं, इसमें ग्लिसरॉल होता है, अल्कोहल ग्लिसरॉल के रूप में होता है स्टूडेंट्स, इसलिए इनको ग्लिसराइड्स भी कहते हैं, याद रखिए। अब देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मैं शेयर करना चाहूँगा। अ फैट मॉलिक्यूल, ये जो भी ट्राइग्लिसराइड है या न्यूट्रल फैट है स्टूडेंट, राइट, इसको आप कह सकते हो न्यूट्रल फैट या ट्रू फैट। इसमें फैटी एसिड मॉलिक्यूल होगा स्टूडेंट। अ फैट मॉलिक्यूल, ये जो फैट मॉलिक्यूल है दैट कंसिस्ट ऑफ व्हाट, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल। कभी भी कंडीशनल है स्टूडेंट, याद रखिए, एक ही ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल होगा, न्यूट्रल फैट में एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल होगा। जहाँ तक फैटी एसिड्स की बात है स्टूडेंट्स, फैटी एसिड एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं फैटी एसिड्स, या 3 भी हो सकते हैं स्टूडेंट, याद रखिए, इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, देख सकते हो आप क्लियरली, बहुत ही सिंपल है। तो सिंपल फैट्स का मतलब क्या है, तो आप जान चुके हो स्टूडेंट, सिंपल फैट्स आर नथिंग बट व्हाट, एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद वेरियस अल्कोहल्स। सिंपल फैट्स में हमने टाइप्स देखे स्टूडेंट्स, राइट, कौन से टाइप्स से, 2 इंपॉर्टेंट टाइप्स है, न्यूट्रल फैट्स एक है, इन्हीं को ट्रू फैट्स भी कहते हैं स्टूडेंट्स, और दूसरा एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी है वैक्सिस। ये 2 याद रखिए बेटा, राइट। अभी देखो, जहाँ तक न्यूट्रल फैट्स की बात करेंगे, ट्रू फैट्स की बात करेंगे स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है, ये भी एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स है, याद रखिए, लेकिन यहाँ पर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद
अल्कोहल, यहाँ पर ग्लिसरॉल होता है स्टूडेंट्स, याद रखिए। अगर ग्लिसरॉल है, फैटी एसिड कोई भी रहने दो, ग्लिसरॉल है तो उसको हम क्या कहेंगे, न्यूट्रल फैट कहेंगे या ट्रू फैट कहेंगे स्टूडेंट्स। और ये ट्रू फैट न्यूट्रल फैट में कभी भी याद रखिए जो अल्कोहल है ग्लिसरॉल है, और एक ही ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल होगा स्टूडेंट। ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ हो सकता है एक फैटी एसिड पार्टिसिपेट हो जाएगा एस्टरिफिकेशन में, हो सकते हैं 2 फैटी एसिड भी एस्टरिफिकेशन में पार्टिसिपेट करेंगे स्टूडेंट्स, हो सकता है 3 भी करेंगे। तो इसीलिए कभी भी याद रखिए न्यूट्रल फैट ट्रू फैट्स में, ये ग्लिसराइड्स में राइट एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल होगा स्टूडेंट। फैटी एसिड का जो नंबर है 1 से 3 हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया, आप देख सकते हो फैट मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ राइट। सो दिस न्यूट्रल फैट मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ व्हाट, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल स्टूडेंट्स एंड 1 to 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ व्हाट, ये देखिए सेम टू सेम फैटी एसिड्स हो सकते हैं या डिफरेंट लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हो सकते हैं स्टूडेंट्स। ये है मैंने ब्रीफ में बताया आपको न्यूट्रल फैट्स के बारे में या इनको ट्रू फैट्स के बारे में आपने ब्रीफ में जानकारी हासिल की स्टूडेंट्स। अब देखिए इसमें दूसरा जो कैटेगरी है ना स्टूडेंट्स, वैक्सेस है। इसके बारे में एनसीईआरटी के बुक में कुछ ज़्यादा नहीं लिखा है, लेकिन हमारे बच्चों को थोड़ा सा पता रहना चाहिए, ये मेरा उद्देश्य है यहाँ पर वैक्सेस बताने के पीछे स्टूडेंट्स, राइट। आपको पता होना चाहिए वैक्सेस जो है फैट्स है। वैक्सेस कौन से फैट्स के कैटेगरी को बिलोंग करते हैं स्टूडेंट्स, सिंपल फैट कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, ये भी याद रखिए आप। वैक्सेस में एग्जैक्टली होता क्या है, बहुत ही फेमस वैक्स आपको पता है स्टूडेंट्स, बी वैक्स है, राइट। सो ये बी वैक्स जो है ना स्टूडेंट, ये है लिपिड, और दैट टू कौन सा लिपिड है ये याद रखना होगा, सिंपल लिपिड है स्टूडेंट, याद रखिए। अब देखिए वैक्स, बी वैक्स में क्या होता है, ये जो सिंपल लिपिड्स है ना, कभी भी याद रखिए एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद वेरियस अल्कोहल बोल के बताया था स्टूडेंट्स मैंने, राइट। यहाँ पर वैक्सेस में भी क्या होता है स्टूडेंट्स, दीज आर आल्सो एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद अल्कोहल हायर मॉलिक्यूलर वेट स्टूडेंट, हायर मॉलिक्यूलर वेट वाला अल्कोहल होगा। यहाँ पर ग्लिसरॉल नहीं होगा स्टूडेंट, याद रखिए हायर मॉलिक्यूलर वेट वाला अल्कोहल होगा, राइट स्टूडेंट, राइट। अब देख सकते हो इंस्टेड ऑफ ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल कभी भी आप गलती से भी गलती नहीं करना स्टूडेंट्स, वैक्सेस में फैटी एसिड होगा, राइट। सो वैक्सेस क्या है, एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड से स्टूडेंट्स, राइट। सो यहाँ पर फैटी एसिड का एस्टरिफिकेशन होता है किसके साथ, अल्कोहल के साथ, लेकिन यहाँ पर अल्कोहल किस तरह का होगा स्टूडेंट्स, हाई मॉलिक्यूलर वेट अल्कोहल होगा, और ग्लिसरॉल कभी नहीं होगा, याद रखिए स्टूडेंट्स, राइट। बहुत ही सिंपल है बेटा। देखिए यहाँ पर आप कंपेयर कर सकते हो, सिंपल लिपिड्स में भी मैंने एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद वेरियस अल्कोहल बताया, जैसा ही मैंने न्यूट्रल फैट्स लिया स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी मैंने सेम डायलॉग, एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद अल्कोहल, यहाँ पर क्या है ग्लिसरॉल है स्टूडेंट, राइट। यहाँ पर देखिए तीसरे में सेम एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद अल्कोहल, बट दिस टाइम अल्कोहल इज नॉट सिंपल ग्लिसरॉल, अल्कोहल इज व्हाट, लॉन्ग चेन, राइट स्टूडेंट, ये याद रखिए हाई मॉलिक्यूलर वेट अल्कोहल है, याद रखिए। कौन सा हाई मॉलिक्यूलर वेट अल्कोहल है हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा ब्रीफ में। अब देख सकते हो स्टूडेंट्स बी वैक्स है, लैनोलिन है, याद रखिए, बहुत ही सिंपल है बेटा। बी वैक्स के बारे में हम थोड़ा सा जानकारी हासिल कर लेते हैं। अब देखिए ये जो पाल्मिटिक एसिड है ना स्टूडेंट्स, पाल्मिटिक एसिड क्या है ये यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। देखिए पाल्मिटिक एसिड, राइट, ये याद रखिए पाल्मिटिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड क्या है स्टूडेंट, पाल्मिटिक एसिड है सो फैटी एसिड है, आपको याद रखना होगा, थोड़ा सा याद रखिए, राइट। ये थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा हूँ। पाल्मिटिक एसिड के साथ राइट मिरिसिल अल्कोहल होगा स्टूडेंट्स, कौन सा, मिरिसिल अल्कोहल, ये याद रखिए मिरिसाइल अल्कोहल। मिरिसाइल अल्कोहल के साथ पाल्मिटिक एसिड का एस्टरिफिकेशन होने के बाद क्या फॉर्म होता है स्टूडेंट्स, बी वैक्स फॉर्म होता है, याद रखिए बेटा। क्या कौन सा फॉर्म होता है, बी वैक्स फॉर्म हो जाएगा, याद रखिए, राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। अभी देखिए बी वैक्स में क्या कंपोनेंट्स है स्टूडेंट्स, पाल्मिटिक एसिड इज एस्टरिफाइड विद व्हाट, मिरिसिल अल्कोहल, उसी को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, बी वैक्स कहते हैं, याद रखिए। बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट, राइट। सो एस्टरिफिकेशन के दौरान कभी भी वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा स्टूडेंट, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया स्टूडेंट्स, सिंपल फैट्स के बारे में हमने डिस्कशन किया। इसके बारे में इतना विस्तार से एनसीईआरटी के बुक में आपको नहीं देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स, लेकिन आपको ये कंपलसरी याद रखना पड़ेगा। सो लिपिड्स क्या है हमने डिस्कस किया, लिपिड्स आर क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज, 3 कैटेगरीज। 3 कैटेगरीज में हमने पहला देखिए सिंपल लिपिड्स क्या है, सिंपल लिपिड्स वो डिटेल में हमने डिस्कस किया स्टूडेंट्स, इतना ही याद रखिए, एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद व्हाट, अल्कोहल, ये याद रखिए। फिर सिंपल लिपिड्स को हम फर्दर डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, राइट। सो 2 मेन कैटेगरीज यहाँ पर क्यूटीन, सुबरिन के बारे में
सोचिए मत, छोड़ दीजिए उसको, कम से कम ये याद रखिए। न्यूट्रल फैट्स ट्रू फैट्स है स्टूडेंट। दूसरा जो कैटेगरी है ना वैक्सेस है। न्यूट्रल फैट्स में सर ने क्या बताया, यहाँ पर दीज आर आल्सो एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स, यहाँ पर अल्कोहल ग्लिसरॉल होगा। यहाँ पर वैक्सेस जो है स्टूडेंट्स ये भी क्या है, एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स ही है। यहाँ पर जो अल्कोहल है ना स्टूडेंट्स, ये हेवी मॉलिकुलर वेट, हाई मॉलिकुलर वेट अल्कोहल होगा, याद रखिए स्टूडेंट्स। एग्जांपल बी वैक्स के एक है लियानोलिन है, याद रखिए स्टूडेंट्स। बी वैक्स किस तरह से फॉर्म होगा, यहाँ पर देखिए पाल्मिटिक एसिड है, दैट इज एस्टरिफाइड विद व्हाट, मिरिसिल अल्कोहल स्टूडेंट, राइट। इस तरह से क्या बन गया, बी वैक्स बन गया स्टूडेंट्स। अब हम चलो डिटेल में डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स, ये जो न्यूट्रल फैट्स है, ट्रू फैट्स है, इनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर न्यूट्रल फैट्स में मैंने आपको यहाँ पर एक चीज़ बताए थे, याद रखिए, ये फैटी एसिड स्टूडेंट, राइट, क्या है, फैटी एसिड है और ग्लिसरॉल है। देखिए फैटी एसिड और ग्लिसरॉल हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रल फैट्स है स्टूडेंट्स, इसके ऊपर ही ज़्यादा हमको फोकस करना पड़ेगा। वैक्सेस छोड़ दीजिए, आपके बुक में नहीं लिखा तो जस्ट थोड़ा सा जानकारी हासिल करके उसको छोड़ दीजिए स्टूडेंट्स। इसके ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए, किसके ऊपर, न्यूट्रल फैट्स के ऊपर या ट्रू फैट्स के ऊपर फोकस कीजिए। अभी ट्रू फैट्स क्या है आपको समझ में आया स्टूडेंट्स, ये ट्रू फैट्स या न्यूट्रल फैट्स है, सिंपल लिपिड्स है। और इनका डेफिनेशन किस तरह से आप डिफाइन करोगे न्यूट्रल फैट्स को या ट्रू फैट्स को, एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद व्हाट, यू नो ग्लिसरॉल स्टूडेंट्स, राइट, एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद अल्कोहल लाइक ग्लिसरॉल, ये इतना याद रखना होगा स्टूडेंट्स। ये न्यूट्रल फैट्स को हम ग्लिसराइड्स भी कहते हैं, इसमें बहुत सारे टाइप से, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड, स्टूडेंट ये याद रखना होगा आपको। कभी भी एक ही ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल होगा, फैटी एसिड नंबर 1 से लेकर 3 तक हो सकता है स्टूडेंट। एक फैटी एसिड एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है तो मोनोग्लिसराइड करेंगे, एक ही ग्लिसरॉल रहेगा 2 फैटी एसिड से तो डाइग्लिसराइड किस तरह से फॉर्म होता है हम देखेंगे स्टूडेंट्स। ट्राइग्लिसराइड में 3 फैटी एसिड्स, एक ग्लिसरॉल होता है, याद रखिए। इसके ऊपर हमको ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अभी देखिए न्यूट्रल फैट्स के ऊपर हमको ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और न्यूट्रल फैट में देखिए क्या कंपोनेंट्स है, 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है स्टूडेंट्स, एक है फैटी एसिड, दूसरा क्या है, ग्लिसरॉल है स्टूडेंट, राइट। अभी हम इन दोनों के बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे, वो हमारे एनसीईआरटी में है स्टूडेंट, राइट। आप देख सकते हो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्लियरली देखिए फैटी एसिड, ये फैटी एसिड कहाँ से लिए स्टूडेंट हम, जो न्यूट्रल फैट में है। जो न्यूट्रल फैट है सिंपल फैट है स्टूडेंट, उसमें याद रखिए सिंपल लिपिड है। सिंपल लिपिड जो न्यूट्रल फैट है उसमें का हमने फैटी एसिड लिया है स्टूडेंट, राइट। और उसमें कितने कंपोनेंट्स है, फैटी एसिड एक कंपोनेंट है, दूसरा ग्लिसरॉल है स्टूडेंट, राइट। ये ग्लिसरॉल और फैटी एसिड किस में आते हैं, लिपिड्स में आते हैं, याद रखिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट टू सिंपल लिपिड्स में आते हैं। चलो अब हम ये फैटी एसिड्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। आप देख सकते हो यहाँ पर देखिए फैटी एसिड्स क्या है। फैटी एसिड्स स्टूडेंट्स ये ऑर्गेनिक एसिड से, याद रखिए, और ये अनब्रांच्ड चेन्स ऑफ हाइड्रोकार्बन आटम से, याद रखिए बेटा, अनब्रांच्ड चेन्स ऑफ हाइड्रोकार्बन आटम से हैविंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप, राइट, अटैच टू आर ग्रुप। बहुत ही सिंपल है। व्हाट आर फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स कभी भी याद रखिए ये ऑर्गेनिक एसिड से। फैटी एसिड्स हैव व्हाट, लॉन्ग चेन्स ऑफ व्हाट, दीज आर सिंपल फैटी एसिड्स जनरली ऑर्गेनिक एसिड से, और दीज आर हैविंग अनब्रांच्ड, क्या, अनब्रांच्ड चेन ऑफ अनब्रांच्ड चेन ऑफ व्हाट, कार्बन आटम से स्टूडेंट्स, याद रखिए। देखिए यहाँ पर मैंने बताया ये चेन कैसा है, ब्रांच्ड है कि अनब्रांच्ड है स्टूडेंट्स, राइट। देखिए यही है फैटी एसिड, याद रखिए बेटा, राइट, बहुत ही सिंपल है, इतना ही याद रखिए। फैटी एसिड्स आर ऑर्गेनिक एसिड्स, दे हैव व्हाट, दे हैव अनब्रांच्ड चेन ऑफ कार्बन आटम स्टूडेंट्स हैविंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, देखिए यहाँ पर मैंने कार्बोक्सिलिक ग्रुप बताया स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो, बहुत ही सिंपल है बेटा, याद रखिए। और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है ना स्टूडेंट्स, ये आर ग्रुप को अटैच होकर रहता है। क्या है आर ग्रुप, आपको पता है आर ग्रुप का मतलब क्या है, उसमें वेरिएबल नंबर ऑफ व्हाट कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं स्टूडेंट्स, याद रखिए। वेरिएबल ग्रुप मैंने बताया था आपको जब हम अमीनो एसिड्स पढ़ रहे थे तब स्टूडेंट्स, राइट। देखिए अब ये जो आर ग्रुप है ना स्टूडेंट्स, ये आर ग्रुप मिथाइल भी हो सकता है, आप याद रखिए, CH3 भी हो सकता है स्टूडेंट, राइट। अगर मान के चलिए CH3 है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो स्टूडेंट्स, अगर मान के चलिए कुछ समय के लिए CH3COOH हम इस तरह से लिखेंगे स्टूडेंट्स, तो ये क्या हुआ, ये हुआ एसिटिक एसिड स्टूडेंट, आपको याद रखना होगा, राइट। देखिए मिथाइल हो सकता है, क्या इथाइल भी हो सकता है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो यहाँ पर, राइट स्टूडेंट, राइट। अगर इथाइल लिखना है हमको तो क्या लिखेंगे, CH3 CH2, राइट, COOH, हम ये भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। देखिए जो आर ग्रुप है ना, ये आर ग्रुप हो सकता है मिथाइल भी हो सकता है इथाइल भी हो स्टूडेंट, याद रखिए। बहुत ही सिंपल है बेटा, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, याद रखिए।
ये एसिटिक एसिड है, ये प्रोपेनोइक एसिड है स्टूडेंट, याद रखिए, बहुत ही सिंपल है। राइट। सो इस तरह से आपको समझना है, इसको समझ के याद रखना है स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल है। एनसीईआरटी का एज इट इज है स्टूडेंट्स, याद रखिए। फैटी एसिड्स के बारे में डायरेक्ट लिख दिया, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर फैटी एसिड न पढ़ते हुए फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के बारे में डिटेल में पढ़े स्टूडेंट्स। और ये दो जो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड है किस में आते हैं स्टूडेंट्स, ये सिंपल लिपिड्स में आते हैं। इनका मिलन से क्या होता है, न्यूट्रल फैट्स या आप कह सकते हो स्टूडेंट्स ट्रू फैट्स बनते हैं, याद रखें स्टूडेंट्स। इसके बारे में अब हमको डिटेल में डिस्कस करना है, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। यहाँ से ही क्वेश्चन बनने का चांस है, बहुत ज़्यादा चांस है, याद रखिए बेटा। राइट, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, याद रखिए। चलो बेटा अभी बताइए क्या है फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स क्या है, फैटी एसिड्स आर ऑर्गेनिक एसिड्स एंड फैटी एसिड इज हैविंग व्हाट, वेरी लॉन्ग चेन ऑफ, मतलब अनब्रांच्ड चेन ऑफ व्हाट, कार्बन आटम्स से स्टूडेंट्स देख सकते हो। फैटी एसिड इज ए मॉलिक्यूल, राइट, इज एन फैटी एसिड मॉलिक्यूल इज एन अनब्रांच्ड चेन ऑफ, राइट। ये देखिए कार्बन आटम से, कार्बन आटम का लॉन्ग चेन है, अनब्रांच्ड चेन है स्टूडेंट्स, राइट। एंड दैट अनब्रांच्ड चेन ऑफ द कार्बन आटम्स इज अटैच्ड टू व्हाट, आर ग्रुप। यहाँ पर देख सकते हो स्टूडेंट्स, ये मान के चलिए बहुत ही सिंपल है, ये जो आप देख सकते हो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, हैविंग व्हाट, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। एंड ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप किसके साथ अटैच होके स्टूडेंट्स आप देख सकते हो यहाँ पर, आर ग्रुप के साथ अटैच होके, ये सिंपल तरीके से मैंने बता दिया। तो फैटी एसिड ऑर्गेनिक एसिड है स्टूडेंट, इट कंसिस्ट ऑफ व्हाट, लॉन्ग चेन ऑफ व्हाट, कार्बन आटम्स, राइट, अटैच टू व्हाट, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। एंड ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज जनरली अटैच टू व्हाट, आर ग्रुप स्टूडेंट। आर ग्रुप कैसा हो सकता है, आर ग्रुप छोटे से छोटा भी हो सकता है, मिथाइल के जैसा, राइट, इथाइल भी हो सकता है स्टूडेंट्स। और तो और ये आर ग्रुप जो है ना स्टूडेंट्स, राइट, बहुत लंबा भी हो सकता है। देखिए यहाँ पर मैंने मेंशन किया है स्टूडेंट्स, राइट, आर हायर नंबर ऑफ व्हाट, CH2 ग्रुप्स, हायर नंबर ऑफ CH2 ग्रुप्स। आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए CH2, ये क्या हुआ CH2, ये क्या हुआ CH2। आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, इतना सारा लंबा फार्मूला, आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, इसको सिंप्लीफाई करके बताया जाएगा, बहुत ही सिंपल है। तो आपको इतना ही याद रखना है, जो आर ग्रुप है मिथाइल भी हो सकता, इथाइल भी हो सकता, या फिर हो सकता है स्टूडेंट्स हायर नंबर ऑफ CH2 ग्रुप्स भी हो सकता है। हायर नंबर कहाँ से कहाँ तक, देखिए 1 कार्बन से लेके 19 कार्बन तक हो सकते हैं स्टूडेंट्स, याद रखिए 19 कार्बन तक भी हो सकता है। एनसीईआरटी का पॉइंट है, आप देख सकते हो स्टूडेंट्स। अभी यहाँ पर आपको समझाने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स मैंने रखा है स्टूडेंट। देखिए पाल्मिटिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड जो है स्टूडेंट, पाल्मिटिक एसिड क्या है, फैटी एसिड है। पाल्मिटिक एसिड में कितने कार्बन आटम्स है स्टूडेंट्स, पाल्मिटिक एसिड में जो मैंने आपको यहाँ पर ये बताया स्टूडेंट्स, ये पाल्मिटिक एसिड है। पाल्मिटिक एसिड में आप काउंट कर सकते हो 16 कार्बन है स्टूडेंट्स, राइट, याद रखिए 16 कार्बन, ये इंक्लूडिंग व्हाट, कार्बन ऑफ द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये आपको याद रखना होगा, इंक्लूडिंग कार्बन ऑफ व्हाट, कार्बोक्सिल ग्रुप का, कार्बोक्सिल ग्रुप COOH ग्रुप का जो कार्बन है उसको पकड़ के कितने 16 स्टूडेंट्स, याद रखिए। कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कार्बन को छोड़ के पाल्मिटिक एसिड में कितने कार्बन होते हैं स्टूडेंट्स, 15 कार्बन होते हैं, याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से क्वेश्चन बनते हैं, ये आपको अंडरस्टैंडिंग होना स्टूडेंट, राइट। चलो हम दूसरा एक एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो, देखिए आराकिडोनिक एसिड है स्टूडेंट्स। आराकिडोनिक एसिड में 20 कार्बन आटम्स होते हैं। देखिए आप यहाँ पर, ये आराकिडोनिक एसिड का फार्मूला है, ना तो ये फार्मूला आपके टेक्स्ट बुक में है, ना तो ये फार्मूला आपके टेक्स्ट बुक में है, और ना तो आपको ये पूरा लंबा चौड़ा याद रखना है स्टूडेंट्स, ना तो आपको ये याद रखना है। समझने के लिए आपको ये बताया गया है स्टूडेंट्स, याद रखिए, बहुत ही सिंपल है बेटा, राइट। अभी MBBS में आपको एक स्पेशल राइट सब्जेक्ट होगा बायोकेमिस्ट्री, तो वहाँ पर आप सब स्ट्रक्चर के साथ पढ़ना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर भी कैसे, केमिस्ट्री में तो कैसे पढ़ लेते हो स्टूडेंट्स, तो बायोलॉजी में भी थोड़ा सा पढ़ने की आदत डालो, राइट, बहुत ही सिंपल होता है, याद रखिए। अभी देखिए हमने 2 एग्जाम्पल्स देख लिए स्टूडेंट्स जो एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में है। क्या है, फैटी एसिड्स के लिए 2 एग्जाम्पल, पाल्मिटिक एसिड है। पाल्मिटिक एसिड में कितने कार्बन आटम्स होते हैं, 16 कार्बन आटम्स होते हैं। 16 कार्बन आटम्स कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कार्बन को पकड़ के स्टूडेंट, राइट। अब देखिए स्टूडेंट्स आराकिडोनिक एसिड में कितने होते हैं, आराकिडोनिक एसिड में 20 कार्बन होते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कार्बन को पकड़ के स्टूडेंट, ये याद रखिए बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। देखिए ये जो पाल्मिटिक एसिड है ना, ये सैचुरेटेड फैटी एसिड है स्टूडेंट्स, इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा है आपको। यहाँ पर देखिए आपको कुछ डबल बॉन्ड्स दिख रहे हैं स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 इस तरह से डबल बॉन्ड्स दिख रहे हैं। आराकिडोनिक एसिड में आपको डबल बॉन्ड्स दिखेंगे स्टूडेंट्स, राइट। सो आराकिडोनिक एसिड जो है ना अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है स्टूडेंट्स, याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पॉली अनसैचुरेटेड ओमेगा 6 फैटी एसिड है, कौन सा, आराकिडोनिक एसिड स्टूडेंट, याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, राइट। तो चलो इस तरह से आपने थोड़ा सा जानकारी हासिल किया स्टूडेंट्स, किसके बारे में, फैटी एसिड्स के बारे में आपने थोड़ा सा जानकारी हासिल किया है।
चलो स्टूडेंट्स, और हम डिटेल में डिस्कस करते हैं किसके बारे में, फैटी एसिड्स के बारे में। अभी हम बेटा न्यूट्रल फैट्स ही डिस्कस कर रहे हैं, सिंपल फैट्स में न्यूट्रल फैट्स ही डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स, राइट। याद रखिए बहुत ही सिंपल है बेटा, राइट राइट। न्यूट्रल फैट्स में मैंने क्या कहा था, न्यूट्रल फैट्स आर नथिंग बट ए ट्रू फैट्स है, ग्लिसराइड से स्टूडेंट्स, इसी को मैंने क्या कहा था, एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद ग्लिसरॉल। तो फैटी एसिड्स, हम जो एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद ग्लिसरॉल, जिसको मैंने ट्रू लिपिड्स, सिंपल ट्रू लिपिड्स या न्यूट्रल लिपिड्स बताया था स्टूडेंट्स, उसी में का मैंने फैटी एसिड लेके आपको एक्सप्लेन किया है स्टूडेंट। देखिए आप, बहुत ही सिंपल है। फिर बाद में फैटी एसिड का पूरा एक्सप्लेनेशन होने के बाद हम ग्लिसरॉल की तरफ बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, राइट राइट। फिर बाद में ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का मिलन होने के बाद, एस्टरिफिकेशन होने के बाद मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड किस तरह से फॉर्म होता है ये देखेंगे स्टूडेंट्स, राइट राइट। बहुत ही सिंपल होता है, इसका पढ़ने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, देखेंगे स्टूडेंट्स। अभी हम देखिए फैटी एसिड हमने कंप्लीट कर लिया स्टूडेंट्स, लेकिन इसमें अब टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स हम देखेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी आपके बुक में थोड़ा सा लिखा हुआ है, थोड़ा सा लिखा हुआ है, ज़्यादा नहीं है, तो मैं भी आपको यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर समझाना चाहूँगा स्टूडेंट्स। टाइप्स ऑफ अगर फैटी एसिड्स आप देखोगे तो देर आर टू टाइप्स ऑफ फैटी एसिड स्टूडेंट्स, याद रखिए, राइट राइट। बहुत ही सिंपल है, कौन से वो टू टाइप्स, एक देख सकते हो आप सैचुरेटेड फैटी एसिड्स है स्टूडेंट्स। क्या है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स? सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का मतलब क्या है? सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का मतलब है स्टूडेंट्स, राइट, ये भी फैटी एसिड्स है लेकिन इसमें डबल बॉन्ड नहीं होगा। फैटी एसिड्स विदाउट डबल बॉन्ड, फैटी एसिड्स विदाउट डबल बॉन्ड आर कॉल्ड व्हाट, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। याद रखिए, दे हैव नो डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड स्टूडेंट्स, याद रखिए, बहुत ही सिंपल है। डबल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो वैसे फैटी एसिड्स को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, राइट, ओनली सिंगल बॉन्ड रहेगा उनमें, याद रखिए, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड्स आर एब्सेंट। तो आप इतना ही याद रखिए, फैटी एसिड्स विदाउट डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आर कॉल्ड व्हाट, सैचुरेटेड फैटी एसिड स्टूडेंट, याद रखिए। एग्जाम्पल पाल्मिटिक एसिड, ये बहुत ही संभल के आपको यहाँ पर काम करना है स्टूडेंट्स, याद रखिए, ये एनसीईआरटी में फार्मूला है, CH3 CH2 टेकन 14 COOH। आप यहाँ पर देख सकते हो CH2 CH14 COOH, काउंट कीजिए स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए 14 बार, 14 टाइम्स मैंने क्या लिया, CH, बहुत ही सिंपल है, याद रखिए, क्या CH मैंने 14 टाइम्स लिया। प्रीवियसली मैंने आपको बताया था, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो मैंने बताया ना स्टूडेंट्स, यहाँ पर 14 टाइम्स मैंने क्या लिया, 14 टाइम्स आप काउंट कर सकते हो स्टूडेंट्स, राइट, CH2 लिया मैंने, देख सकते हो आप यहाँ पर, राइट राइट। सो वही यहाँ पर बताया गया स्टूडेंट्स, ये सिंपल फार्मूले के साथ मैं बताऊंगा अभी आपको। यहाँ पर पाल्मिटिक एसिड में क्या होता है, पाल्मिटिक एसिड का फार्मूला याद रखिए। पाल्मिटिक एसिड में टोटल कितने कार्बन है, 16 कार्बन से, याद रखिए, कितने, 16 है। अब 16 कैसे, देखिए यहाँ पर एक कार्बन हुआ, हाँ ये 14 है स्टूडेंट, 14 कार्बन, CH टेकन 14, 14, और यहाँ का एक कार्बन 15, और कार्बोक्सिलिक एसिड का एक कार्बन 16। तो पाल्मिटिक एसिड में कितने कार्बन हो गए स्टूडेंट, टोटल बताइए, 16 कार्बन। 16 कार्बन किसमें बताइए, पाल्मिटिक एसिड में 16 कार्बन है, और कार्बन, कार्बोक्सिलिक कार्बन की इंक्लूडिंग 16 कार्बन है स्टूडेंट, याद रखिए। अब देखिए दूसरा एक एग्जांपल दिया मैंने, किसके लिए, सैचुरेटेड फैटी एसिड के लिए। हो सकता है कल आपको नीचे दिए गए हुए फैटी एसिड्स में सैचुरेटेड फैटी एसिड पहचानो, इस तरह का क्वेश्चन आया, आइडेंटिफाई द सैचुरेटेड फैटी एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। सो स्टीरिक एसिड देखिए स्टूडेंट, स्टीरिक एसिड का फार्मूला भी मैंने यहाँ पर लगाया है। स्टीरिक एसिड में कितने कार्बन होते हैं, राइट राइट, स्टीरिक एसिड में होते हैं टोटल 18 कार्बन होते हैं स्टूडेंट, याद रखिए, कितने, 18, स्टीरिक एसिड में 18। अब देखिए 18 कहाँ से आए, 17 स्टूडेंट, राइट, इसको मैंने दूसरे तरह से फार्मूला लिखा है, आप देख सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो स्टूडेंट्स, क्लियरली, बहुत ही सिंपल है। अगर आप चाहे तो इस तरह का ये फार्मूला लिख सकते हो स्टीरिक एसिड के लिए, किस तरह का, इस तरह का। जब आप उस तरह का लिखोगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, देखिए CH2, राइट, मैं जब ये CH है ना स्टूडेंट, CH में कितने टाइम लूंगा, यहाँ पर 14 बार लिया, यहाँ पर 16 बार लूंगा स्टूडेंट, राइट। फिर बाद में क्या लिखूंगा, देखिए COH। तो ये जो मैंने फार्मूला लिखा है ना, C17H35 COOH स्टूडेंट्स, राइट, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, चेंज करके कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, CH2 CH टेकन 16 और COOH स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पर टोटल कितने हो गए बताइए, 18 कार्बन आटम्स हो गए, कितने हो गए बेटा, 18 हो गए। यहाँ पर कितने हो गए, उसमें पाल्मिटिक एसिड में टोटल 16 हो गए स्टूडेंट, याद रखिए, 16 कार्बन यहाँ पर है, 18 कार्बन यहाँ पर है, याद रखिए बेटा, बहुत ही सिंपल है। अभी देखिए CH2 CH टेकन 16 COOH, इसका मतलब यहाँ पर देखिए 16 17 18, तो इस तरह से आपको याद रखना है। सो पाल्मिटिक एसिड 16 कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड है, याद रखिए बेटा।
और स्टीरिक एसिड जो है 18 कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड है, याद रखिए। ये दो भी स्टीरिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड किसके लिए एग्जाम्पल है? सैचुरेटेड फैटी एसिड के लिए एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, याद रखिए, बहुत ही सिंपल है। अभी स्टूडेंट आगे बढ़ते और ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे स्टूडेंट्स। अभी देखिए यहाँ पर फैटी एसिड्स विदाउट डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड को मैंने क्या कहा था? सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहा था स्टूडेंट्स। यहाँ पर क्या है? फैटी एसिड्स विद डबल बॉन्ड। अगर मान के चलिए फैटी एसिड्स में डबल बॉन्ड होता है, याद रखिए, एक डबल बॉन्ड होने दीजिए या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड होने दीजिए, वैसे फैटी एसिड्स को हम क्या कहेंगे? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहेंगे स्टूडेंट्स। इतना ही याद रखिए, फैटी एसिड्स विद वन और मोर देन वन डबल बॉन्ड्स आर कॉल्ड व्हाट? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड स्टूडेंट, राइट। बहुत ही सिंपल है बेटा, याद रखिए। देखिए अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है स्टूडेंट्स, राइट। वो कौन से? अगर मान के चलिए ओनली वन बॉन्ड होता है, क्या एक ही बॉन्ड होता है डबल बॉन्ड, तो उसको मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं स्टूडेंट्स, याद रखिए। क्या? मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अगर मान के चलिए फैटी एसिड में एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड होते हैं स्टूडेंट्स, तो उनको हम पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहते हैं, याद रखिए बेटा। कम से कम आप याद रखिए, सैचुरेटेड फैटी एसिड के लिए एग्जांपल, सैचुरेटेड का मतलब क्या है, एग्जांपल्स याद रखिए। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के लिए अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का डेफिनेशन याद रखिए। फैटी एसिड्स विद वन और मोर देन वन डबल बॉन्ड आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के लिए एग्जाम्पल याद रखिए स्टूडेंट्स, कम से कम याद रखिए। अगर मान के चलिए अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में एक ही डबल बॉन्ड होता है, तो उसको मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहते हैं। क्या स्टूडेंट्स? मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहते हैं स्टूडेंट्स, याद रखिए, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हो ओलिक एसिड एक एग्जाम्पल है। देखिए अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को पुनः हम डिवाइड कर सकते, लेकिन आपको अगर ये आप याद रख सकते होंगे तो याद रखिए स्टूडेंट्स, एक है मूफा, दूसरा है पूफा स्टूडेंट। क्या है? एक है मूफा, दूसरा है पूफा। ये मूफा का मतलब याद रखे मोनो, UF ये कॉमन है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। यम का मतलब है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड स्टूडेंट। दूसरा है पूफा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, राइट। मूफा, पूफा। मूफा के लिए मैंने एक एग्जांपल रख दिया, आप देख सकते हो। ओलिक एसिड जो है ना स्टूडेंट्स, ये मूफा के लिए एग्जांपल है। ओलिक एसिड क्या है बेटा? मूफा के लिए एग्जांपल है, याद रखिए। जो अराकिडोनिक एसिड है ना स्टूडेंट्स, अराकिडोनिक एसिड में 4 डबल बॉन्ड से आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, राइट। आप देखिए यहाँ पर क्लियरली मैंने दिखाया, आप ये जो है ये मूफा के लिए एग्जाम्पल है। क्या है बेटा? मूफा के लिए एग्जाम्पल है, आप देख सकते हो, बहुत ही क्लियरली मैंने बताया। ये है ओलिक एसिड स्टूडेंट। ओलिक एसिड में आपको यहाँ पर मात्र एक डबल बॉन्ड दिख रहा है क्या? यस। तो यहाँ पर ओलिक एसिड कई के लिए एग्जाम्पल है, फर्दर मूफा के लिए एग्जाम्पल है। अब देखिए, हो सकता है आपको कल एक कॉलम में आपको दिखेंगे क्या स्टूडेंट? एक कॉलम में दिखेंगे फैटी एसिड टाइप्स, दूसरे कॉलम में दिखेंगे एग्जाम्पल, राइट। सैचुरेटेड फैटी एसिड, फिर मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड, फिर बाद में व्हाट यू कैन से, एक कॉलम में सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, वही कॉलम में आपको मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इस तरह से दिखेंगे स्टूडेंट। और दूसरी तरफ एग्जाम्पल्स देंगे, कुछ भी हो सकता है स्टूडेंट, तो इसीलिए आपको बहुत ही केयरफुल रहना है। तो यहाँ पर देखिए ओलिक एसिड जो है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, मूफा स्टूडेंट, राइट। अब देखिए जो दूसरा है अराकिडोनिक एसिड, आप दूसरा एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हो स्टूडेंट, दूसरा एग्जांपल अराकिडोनिक एसिड। अब अराकिडोनिक एसिड मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया था स्टूडेंट्स, अराकिडोनिक एसिड में 20 कार्बन आटम्स होते हैं। कितने? 20। और कितने डबल बॉन्ड्स होते हैं स्टूडेंट्स? आप देख सकते हो वहाँ पर अराकिडोनिक एसिड में 4 डबल बॉन्ड्स मैंने बताया था स्टूडेंट्स आपको, राइट। बहुत ही सिंपल है बेटा, याद रखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, अराकिडोनिक जो एसिड है ना, पॉली अनसैचुरेटेड ओमेगा 6 फैटी एसिड भी कहते हैं। किसको? ये अराकिडोनिक एसिड को, याद रखिए स्टूडेंट्स। अराकिडोनिक एसिड का कॉमन नेम क्या है? पॉली अनसैचुरेटेड ओमेगा 6 फैटी एसिड है, याद रखिए। अराकिडोनिक एसिड में 20 कार्बन आटम्स होते हैं, याद रखिए स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस इसमें देख लिया था। अभी देखिए प्रीवियस इसमें हमने क्या दिया था? फैटी एसिड्स देखा था स्टूडेंट्स। फैटी एसिड्स क्या है, उनका स्ट्रक्चर ब्रीफ में देखा था, राइट। फैटी एसिड्स के लिए एग्जाम्पल देखा था स्टूडेंट्स हमने, राइट। और अब देखिए टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स में सैचुरेटेड फैटी एसिड से अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से डिफरेंस क्या है दोनों में, ये भी देखा था। सैचुरेटेड फैटी एसिड में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड नहीं होते स्टूडेंट्स। अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड्स होते हैं, एक हो सकता है, मोर देन वन होते, तो उसके हिसाब से भी हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स, मूफा और पूफा इसमें, राइट। मूफा का मतलब है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अगर मान के चलिए एक ही डबल बॉन्ड है,
तो उसको हम कहेंगे मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अगर मान के चलो एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड से तो उसको हम कहेंगे पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड स्टूडेंट, राइट राइट। मूफा के लिए मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया आपको, ओलिक एसिड सिंपल एग्जाम्पल है, याद रखिए ओलिक एसिड मूफा के लिए एग्जाम्पल है। और ये जो अराकिडोनिक एसिड है स्टूडेंट, राइट, जो मैंने प्रीवियसली बताया था, अराकिडोनिक एसिड एक्चुअली क्या है, ये पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है स्टूडेंट, याद रखिए। इसको पॉली अनसैचुरेटेड ओमेगा 6 फैटी एसिड भी कहते हैं स्टूडेंट, याद रखिए, बहुत ही फेमस है बेटा, राइट राइट। चलो इसके साथ हमने टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स भी देख लिया स्टूडेंट्स, राइट राइट। अब देखिए फैटी एसिड्स हमने कंप्लीट कर लिए स्टूडेंट्स, राइट। अब देख सकते हो जो ट्राइग्लिसराइड में या आप कह सकते हैं न्यूट्रल फैट्स में स्टूडेंट या ट्रू फैट्स में हमने उसका डेफिनेशन देखा, एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद अल्कोहल लाइक ग्लिसरॉल। उसमें हमने फैटी एसिड्स के बारे में डिटेल में जानकारी हासिल कर लिया स्टूडेंट्स, राइट राइट। चलो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, और जो दूसरा कंपोनेंट है याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ग्लिसरॉल स्टूडेंट, राइट राइट। ग्लिसरॉल को और एक नाम है ट्राईहाइड्रॉक्सीप्रोफेन स्टूडेंट, ये भी याद रखिए ट्राईहाइड्रॉक्सीप्रोफेन। आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने उसका स्ट्रक्चर बताया स्टूडेंट्स, राइट। CH2OH CHOH CH2OH स्टूडेंट्स, इसको प्रैक्टिस कीजिए, NCERT का है, राइट। आप यहाँ पर देख सकते हो स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए ये कार्बन एक, राइट, कार्बन कार्बन कार्बन, याद रखिए बेटा बहुत ही सिंपल है, राइट राइट। सो ये क्या है, ट्राईहाइड्रॉक्सीप्रोफेन स्टूडेंट्स, इसी को हम क्या कहते हैं, याद रखिए, सिंपल, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ये है ग्लिसरॉल स्टूडेंट, क्या है ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल को हम क्या कहते हैं, ट्राईहाइड्रॉक्सीप्रोफेन भी कहते हैं स्टूडेंट्स, याद रखिए, राइट राइट। अभी यही ग्लिसरॉल के साथ क्या होता है, एस्टरिफिकेशन हो जाता है स्टूडेंट्स, किसके, फैटी एसिड का। फैटी एसिड्स अंडरगो एस्टरिफिकेशन विद व्हाट, ग्लिसरॉल, एंड इट फॉर्म्स व्हाट स्टूडेंट्स, याद रखिए, न्यूट्रल फैट्स या ट्रू फैट्स, राइट। किस तरह से होता है हम अब डिटेल में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, राइट राइट। अब देखिए वही हेडिंग लिपिड्स पढ़ रहे स्टूडेंट्स, राइट राइट। अब देखिए फैटी एसिड्स आर एस्टरिफाइड विद ग्लिसरॉल, राइट, थ्रू एस्टर बॉन्ड स्टूडेंट, राइट, फॉर्मिंग मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड एंड ट्राइग्लिसराइड स्टूडेंट्स, याद रखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए अभी तक हमने फैटी एसिड्स बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया स्टूडेंट्स, टाइप डिटेल डिस्कस कर लिया, स्ट्रक्चर्स सब कुछ देखे स्टूडेंट्स सामने। ग्लिसरॉल के बारे में, यस, ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर भी देखे हमने। ग्लिसरॉल को ट्राईहाइड्रॉक्सीप्रोफेन कहते हैं स्टूडेंट्स, ये भी हमने देखा, राइट राइट। अब क्या होगा, अभी देखिए जैसा मैंने पहले बताया था आपको, न्यूट्रल फैट्स या ट्रू फैट्स में क्या होता है, एस्टरिफिकेशन होता है किसका, फैटी एसिड्स का, किसके साथ, ग्लिसरॉल के साथ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर वही मैंने मेंशन किया है डिटेल में। अभी देखिए आप फैटी एसिड्स जो है हमने डिस्कस किए थे, राइट स्टूडेंट्स, राइट। फैटी एसिड्स आर एस्टरिफाइड विद व्हाट, अभी जो हमने ग्लिसरॉल दिखाया था स्टूडेंट्स उसके साथ, फैटी एसिड्स आर एस्टरिफाइड विद ग्लिसरॉल थ्रू व्हाट, एस्टर बॉन्ड्स, राइट, एंड फॉर्मिंग व्हाट, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड। आप देख सकते हो स्टूडेंट्स एस्टरिफिकेशन क्या है, यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा बताया। आप देखिए यहाँ पर, देखिए ये क्या है स्टूडेंट, ग्लिसरॉल है, याद रखिए, ये क्या है, ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल स्टूडेंट, आपको इतना याद रखना होगा, राइट। मैंने बताया था CH2OH CHOH CH2OH स्टूडेंट, राइट, अब हम देख चुके हैं। अभी यहाँ पर क्या है, ये फैटी एसिड है, पाल्मिटिक एसिड है स्टूडेंट, राइट, आपको पता है 16 कार्बन वाला पाल्मिटिक एसिड है। तो देखिए यहाँ पर जो OH है ना स्टूडेंट, ये याद रखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, आपको ये याद रखना पड़ेगा। ये जो OH है, किसका OH बताइए, किसका OH, किसका OH, ये ग्लिसरॉल का OH स्टूडेंट, राइट, ग्लिसरॉल का OH और ये COOH का OH, यहाँ दोनों में के देखिए ये OH निकल रहा है और H के साथ निकल रहा, तो वाटर मॉलिक्यूल निकल गया स्टूडेंट्स, राइट। और वाटर मॉलिक्यूल निकल के क्या हो रहा, यहाँ पर एस्टर बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, याद रखिए स्टूडेंट्स, राइट राइट। अब देखिए एक ग्लिसरॉल एक फैटी एसिड है, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, राइट, देखिए एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल एक फैटी एसिड के साथ एस्टरिफिकेशन हो जाता है, तो क्या फॉर्म होगा, मोनोग्लिसराइड फॉर्म होगा स्टूडेंट, याद रखिए बेटा, बहुत ही सिंपल है। अगर मान के चलिए एक ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल तो एक ही रहेगा, और दो फैटी एसिड के साथ एस्टरिफिकेशन में पार्टिसिपेट होता है, तो क्या होगा, डाइग्लिसराइड होगा स्टूडेंट। मैंने यहाँ पर बताया था, देखिए फैटी एसिड एस्टरिफाइड विद ग्लिसरॉल, right, with ester bond forming monoglyceride, one fatty acid plus glycerol, monoglyceride, two fatty acids plus glycerol, diglyceride स्टूडेंट्स, राइट। आप देख सकते हो वन ग्लिसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड्स, ट्राइग्लिसराइड फॉर्म होता है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो, राइट राइट। यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर में भी मैंने समझाया, आप देखिए स्टूडेंट्स, ये तो सिंपल है, ये ग्लिसरॉल था स्टूडेंट, राइट राइट, बहुत ही सिंपल है। RCOOH क्या है बताइए, RCOOH जो है ना स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने इस तरह से बताया था, किसके लिए, ये है फैटी एसिड स्टूडेंट, राइट। यहाँ पर सिंपल वे में आप इस तरह से लिख सकते हैं RCOH। देखिए RCOH का OH स्टूडेंट, राइट, और यहाँ का OH, वो मिलके क्या हुआ, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया स्टूडेंट्स, एस्टर बॉन्ड फॉर्म हो गया, याद रखिए। देखिए
यहाँ पर एक ग्लिसरॉल है, एक फैटी एसिड है, तो क्या हुआ, मोनोग्लिसराइड फॉर्म होगा स्टूडेंट, राइट। यहाँ पर देख सकते हो ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है लेकिन दो फैटी एसिड्स, राइट, दो फैटी एसिड एस्टरिफिकेशन हो गया दो फैटी एसिड्स का, किसके साथ, ग्लिसरॉल के साथ स्टूडेंट, तो यहाँ पर डाइग्लिसराइड है, याद रखिए। यहाँ पर देखिए तीन फैटी एसिड्स और एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ तीन फैटी एसिड्स का एस्टरिफिकेशन होगा स्टूडेंट्स, राइट, मतलब तीन फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल के बीच में तीन एस्टर बॉन्ड्स फॉर्म हो गए स्टूडेंट्स, राइट, इस तरह से क्या बना, ट्राइग्लिसराइड बना, याद रखिए। अब देखिए कभी भी मोनोग्लिसराइड बनने के लिए एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा स्टूडेंट्स, डाई के लिए दो वाटर मॉलिक्यूल्स निकलेंगे, तीन ट्राइग्लिसराइड के लिए तीन वाटर मॉलिक्यूल्स निकलेंगे, याद रखिए स्टूडेंट्स। ये बहुत ही सिंपल है, मेरे ख्याल से इसके साथ आपको सिंपल लिपिड्स बहुत ही डिटेल में समझ में आएंगे स्टूडेंट्स, राइट, ये याद रखिए स्टूडेंट्स। सिंपल लिपिड्स क्या है, एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल स्टूडेंट्स, राइट। फैटी एसिड्स क्या है, मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया। फैटी एसिड एक ऑर्गेनिक एसिड से स्टूडेंट्स, राइट, सो दे हैव व्हाट, लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन आटम्स एंड दोज लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन आटम्स आर अटैच्ड टू व्हाट, कार्बोक्सिलिक ग्रुप स्टूडेंट्स, दैट विल बी विद कार्बोक्सिलिक ग्रुप, राइट, ये याद रखिए, बहुत ही सिंपल है। एंड यू नो दैट इज अटैच्ड टू व्हाट, आर ग्रुप स्टूडेंट, आर ग्रुप कुड बी मिथाइल, इथाइल, मैंने बताया था, मे बी व्हाट हैविंग हायर नंबर ऑफ कार्बन आटम्स, मैंने ये भी डिटेल में डिस्कस किया था स्टूडेंट्स, एक कार्बन से लेके 19 कार्बन तक भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया था पाल्मिटिक एसिड में कितने हैं, याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, राइट। पाल्मिटिक एसिड में 16 कार्बन आटम से, स्टीरिक एसिड में मैंने बताया था 18 कार्बन आटम से, अराकिडोनिक एसिड में 20 कार्बन आटम से, ये याद रखिए स्टूडेंट्स, ये बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया था, ये फैटी एसिड्स। फिर फैटी एसिड्स को हम दो इसमें डिवाइड करिए स्टूडेंट्स, राइट, एक है सैचुरेटेड फैटी एसिड, दूसरा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड में क्या होता है स्टूडेंट्स, डबल बॉन्ड्स होते नहीं है, अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड्स होते हैं स्टूडेंट्स, एक है तो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, एक से ज़्यादा है तो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, राइट स्टूडेंट, राइट। सो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के लिए पाल्मिटिक एसिड, स्टीरिक एसिड हमने एग्जांपल्स देखे थे, ये याद रखिए आपके टेक्स्ट बुक के एग्जांपल्स कम से कम। फिर बाद में पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में, राइट स्टूडेंट्स, उसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में मूफा के लिए मैंने एक एग्जांपल रखा, ओलिक एसिड स्टूडेंट, राइट, याद रखिए, एनसीईआरटी में वो एग्जांपल भी नहीं है। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के लिए अराकिडोनिक एसिड, याद रखिए स्टूडेंट्स, राइट, बहुत ही सिंपल है, उसको पॉली अनसैचुरेटेड ओमेगा 6 फैटी एसिड भी कहते हैं, याद रखिए स्टूडेंट्स। फिर बाद में फैटी एसिड का एस्टरिफिकेशन ग्लिसरॉल के साथ किस तरह से होता है, मैंने एक्सप्लेन किया स्टूडेंट्स, एक ग्लिसरॉल वन फैटी एसिड मोनोग्लिसराइड, राइट, एक ग्लिसरॉल दो फैटी एसिड डाइग्लिसराइड, एक ग्लिसरॉल तीन फैटी एसिड ट्राइग्लिसराइड स्टूडेंट, राइट, उनके स्ट्रक्चर भी मैंने यहाँ पर आपको बहुत ही डिटेल में समझाया स्टूडेंट, राइट, आप देख सकते हो किस तरह से एस्टरिफिकेशन होता है। एक जो OH ग्रुप है किसका बेटा, याद रखिए OH ग्रुप किसका, यहाँ का OH ग्रुप किसका, ग्लिसरॉल का OH ग्रुप, और COOH का OH ग्रुप स्टूडेंट, राइट, OH प्लस OH एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और एस्टर बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के बीच में स्टूडेंट, राइट, उसी को हम एस्टरिफिकेशन कहते हैं, याद रखिए स्टूडेंट्स, राइट। सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो एनसीईआरटी का स्टूडेंट्स, राइट, एनसीईआरटी का मैंने समझाया, ये देखिए तीन फैटी एसिड से स्टूडेंट्स, 1 2 3 अलग अलग फैटी एसिड से, 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स, एक ग्लिसरॉल है स्टूडेंट, याद रखिए, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, आप देख सकते हो बच्चे, यहाँ पर देखिए ये हाइड्रोजन ये OH के साथ निकल जाएगा, माइनस वाटर हो जाएगा स्टूडेंट, राइट, आप देख सकते हो माइनस वाटर। तो यहाँ पर भी क्या होगा, सेम टू सेम कुछ उसी तरह से होगा स्टूडेंट्स, ये हाइड्रोजन ये OH के साथ निकल जाएगा, यहाँ पर भी से भी क्या होगा, माइनस वाटर होगा। यहाँ पर देखिए ये हाइड्रोजन है ना स्टूडेंट्स, ये OH के साथ निकल जाएगा, यहाँ पर भी माइनस वाटर होगा स्टूडेंट, राइट, ये याद रखिए। सो यहाँ पर मैंने कितने वाटर मॉलिक्यूल्स माइनस किए, 3 वाटर मॉलिक्यूल्स को मैंने माइनस कर दिया स्टूडेंट्स। और यहाँ पर देखिए किस तरह से बॉन्डिंग फॉर्म हो रही, CH2O या CH2O, और यहाँ पर बॉन्ड देखिए स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल है, यही है एस्टर बॉन्ड, यही है एस्टर बॉन्ड, यही है एस्टर बॉन्ड, याद रखिए बेटा, क्या है, यही है एस्टर बॉन्ड, ये आपको समझना है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया स्टूडेंट, राइट, एस्टर बॉन्ड है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भी देखिए ये भी एस्टर बॉन्ड है स्टूडेंट, राइट, ये भी एस्टर बॉन्ड है, याद रखिए, ये भी क्या है बेटा, एस्टर बॉन्ड है, याद रखिए। सो ट्राइग्लिसराइड में कितने एस्टर बॉन्ड से, 3 एस्टर बॉन्ड से, याद रखिए। तो इस तरह से ट्राइग्लिसराइड का फॉर्मेशन हो गया स्टूडेंट, हमने देख लिया। चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, ये जो ट्राइग्लिसराइड है ना बेटा, ये ट्राइग्लिसराइड को ही हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम न्यूट्रल फैट्स कहते हैं स्टूडेंट्स, याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, ट्राइग्लिसराइड्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं और कुछ जानकारी हम हासिल करते हैं स्टूडेंट्स ट्राइग्लिसराइड के बारे में, राइट। आप देख सकते हो ये स्ट्रक्चर आपको एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स, राइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही डायरेक्ट स्ट्रक्चर दिया गया है। यहाँ पर मैंने ये किस तरह से फॉर्म होता है मैंने आपको एक्सप्लेन किया स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर 3H बताया है H2O, तो यहाँ पर आप यहाँ से
अवॉइड कर सकते हो, यहाँ से आप इसको निकाल सकते हो। यहाँ पर बताया तो यहाँ पर बताने की कोई ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट, राइट। वो भी आप याद रखिए, बहुत ही सिंपल है बेटा। अब देखिए ट्राइग्लिसराइड के बारे में, ये ट्राइग्लिसराइड का स्ट्रक्चर आपको एनसीईआरटी के बुक में देखने को मिलेगा स्टूडेंट, राइट। देखिए R1, R2 एंड R3 ये क्या है, फैटी एसिड से स्टूडेंट्स, यहाँ पर देख सकते हो R1, R2, R3 फैटी एसिड से, बाकी का तो ग्लिसरॉल है, आप देख सकते हो स्टूडेंट, राइट। देखिए बहुत ही सिंपल है। आप यहाँ पर अगर देखना चाहो तो स्टूडेंट्स, राइट, उसको और कॉम्प्लिकेटेड बनाया मैंने। ये देखिए, ये जो हरी पट्टी दिख रही है ना स्टूडेंट्स, ये ग्रीन पट्टी, ये है ग्लिसरॉल, राइट। CH2OH, CH2OH, CH2OH स्टूडेंट, आप देख सकते हो यहाँ 3 फैटी एसिड उसके साथ उनका एस्टरिफिकेशन हो गया, याद रखिए बेटा, राइट। सो इस तरह से ट्राइग्लिसराइड फॉर्म हो गया। कैसा, मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया स्टूडेंट, राइट। अब देखिए स्टूडेंट्स, कुछ और बहुत ही अच्छी जानकारी हम हासिल करेंगे जो हमारे टेक्स्ट बुक में है, और वो उसके ऊपर नीट के क्वेश्चंस आएंगे स्टूडेंट। अब देखिए बेस्ड ऑन मेल्टिंग पॉइंट, यहाँ पर ट्राइग्लिसराइड की बारे में बात हो रही स्टूडेंट, याद रखिए हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे, ट्राइग्लिसराइड के बारे में डिस्कस कर रहे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्राइग्लिसराइड्स को ही हम न्यूट्रल फैट्स कहते हैं जनरली, याद रखिए बेटा। ट्राइग्लिसराइड्स आर नथिंग बट व्हाट, यही है न्यूट्रल फैट्स से, याद रखिए बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। यही क्या है, यही है न्यूट्रल फैट स्टूडेंट्स, ट्राइग्लिसराइड्स, राइट। ये ट्राइग्लिसराइड क्या है, किस तरह से फॉर्म होते हैं, मोनोग्लिसराइड, सब कुछ हमने देखा है स्टूडेंट्स। अभी ये देखिए बेस्ड ऑन मेल्टिंग पॉइंट, बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन मेल्टिंग पॉइंट, याद रखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी पॉइंट है स्टूडेंट। यहाँ से क्वेश्चन नीट का बनता है, यहाँ से नीट का क्वेश्चन बनता है, नीट क्वेश्चन बनने का चांस है, याद रखिए। सो बेस्ड ऑन मेल्टिंग पॉइंट, ये जो लिपिड्स है ना स्टूडेंट्स, ट्राइग्लिसराइड स्पेशली, यहाँ पर मैंने क्लियरली मेंशन किया है, देखिए आप ट्राइग्लिसराइड्स या न्यूट्रल फैट्स कह सकते हो स्टूडेंट्स। बेस्ड ऑन मेल्टिंग पॉइंट, लिपिड्स और ट्राइग्लिसराइड कहिए आप, न्यूट्रल फैट्स कहिए स्टूडेंट्स, राइट, ट्रू फैट्स कहिए, दे आर दे आर ऑफ 2 टाइप्स, राइट। क्या है 2 टाइप्स, आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, एक है फैट्स, राइट। अब बताइए फैट्स क्या है, ट्राइग्लिसराइड से स्टूडेंट्स, न्यूट्रल फैट से। अब देखिए ऑयल्स क्या है, ये भी क्या है, ट्राइग्लिसराइड से स्टूडेंट्स, याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये फैट्स ही। सो बेस्ड ऑन मेल्टिंग पॉइंट, ट्राइग्लिसराइड्स आर ऑफ 2 टाइप्स या लिपिड्स आर ऑफ 2 टाइप्स, आप कह सकते हो, फैट्स और ऑयल से स्टूडेंट, राइट। देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये फैट्स क्या है, ऑयल्स क्या है, डिफरेंस क्या है दोनों में, ये देखना है आपको। फैट्स क्या है स्टूडेंट, हायर मेल्टिंग पॉइंट, फैट्स आर हैविंग व्हाट, अगर ट्राइग्लिसराइड्स हैविंग हायर मेल्टिंग पॉइंट आर कॉल्ड व्हाट, फैट्स, याद रखिए। और ये रूम टेम्परेचर, दे रिमेन सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दे रिमेन सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। यहाँ पर मैंने आपको क्लियरली बताया स्टूडेंट्स, ये है फैट है, क्या है बेटा, फैट है। देखिए लिपिड्स किस तरह के होते हैं, लिपिड्स ये जो ट्राइग्लिसराइड्स है ना स्टूडेंट्स, न्यूट्रल फैट्स 2 तरह के, राइट। हम देखिए ये घी भी हम यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, कई के लिए, कुकिंग के लिए, यहाँ पर मैंने बताया कुकिंग के लिए, राइट। सो घी भी यूज़ करते हैं और इधर ऑयल भी यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर आपको ये रूम टेम्परेचर में सॉलिड दिखेगा, ये रूम टेम्परेचर पे क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा स्टूडेंट्स। आपको ये याद रखना है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही मज़ेदार है स्टूडेंट, याद रखिए। आप ये रोज़ खाते हो, घी भी खाते हो, ऑयल भी खाते हो स्टूडेंट्स, तो आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल है। अब देखिए बेस्ड ऑन मेल्टिंग पॉइंट, जो ट्राइग्लिसराइड से, न्यूट्रल फैट से, दे आर ऑफ हाउ मेनी टाइप्स, 2 टाइप्स स्टूडेंट्स। फैट से, फैट्स कैसे होते हैं बताइए, फैट्स जो है ऑब्वियसली वो याद रखिए ट्राइग्लिसराइड से, और दे आर व्हाट, दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, याद रखिए, एंड दे आर हैविंग हायर मेल्टिंग पॉइंट स्टूडेंट, राइट। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स क्या है, अब देखिए फैट्स के लिए अगर आप एग्जांपल्स देखना चाहोगे स्टूडेंट्स, तो क्या है, देखिए बटर है, क्या है बेटा, बटर है, याद रखिए, घी है, घी, बटर, ये एग्जाम्पल्स है किसके लिए, फैट्स के लिए स्टूडेंट्स, याद रखिए। एज फार एज ऑयल्स आर कंसर्न स्टूडेंट, राइट, उसका अपोजिट, सो लोअर मेल्टिंग पॉइंट, ये जो ऑयल का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लोअर मेल्टिंग पॉइंट होता है, एंड ऑयल्स रिमेन व्हाट, इन लिक्विड स्टेट, राइट स्टूडेंट, राइट, याद रखिए, आर दे रिमेन एज ऑयल्स एट रूम टेम्परेचर, ये लिक्विड स्टेट में होते हैं, ऑयल्स है ना लिक्विड स्टेट में होते हैं, बिकॉज दे आर हैविंग लोअर मेल्टिंग पॉइंट स्टूडेंट, याद रखिए, बहुत ही सिंपल है बेटा, याद रखिए। इसके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हो स्टूडेंट्स, जिंजली ऑयल, राइट, सीसेम ऑयल कह सकते हो आप उसको, सैफ्लावर ऑयल, राइट, सनफ्लावर ऑयल, ये बहुत सारे, ग्राउंडनट ऑयल, ये सब एग्जाम्पल्स है किसके लिए स्टूडेंट्स, ऑयल्स के लिए, याद रखिए बेटा। सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, जिंजली ऑयल आपके बुक में लिखा हुआ है, आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, राइट, सनफ्लावर, सैफ्लावर, ये बहुत सारे आप लगा सकते हो। इसके साथ हमने
कंप्लीट व्हाट सिंपल लिपिड्स हमने कंप्लीट देख लिया स्टूडेंट्स, बहुत ही डिटेल में देख लिया। एनसीईआरटी का पूरा टॉप टू बॉटम जानकारी हमने प्राप्त कर लिया है स्टूडेंट्स। अब देखते हैं स्टूडेंट्स सेकंड कैटेगरी ऑफ लिपिड्स, आप देख सकते हो स्टूडेंट्स कंपाउंड लिपिड्स। क्या है कंपाउंड लिपिड्स? बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स। ये देखिए कंपाउंड लिपिड्स में सबसे इंपॉर्टेंट है जो हमारे टेक्स्ट बुक में लिखे सो चीज़ मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, आप याद रखिए। पहले आप कंपाउंड लिपिड्स क्या है ये जान लीजिए। देखिए ये भी क्या है स्टूडेंट्स, ये भी एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड से राइट विद अल्कोहल। ये दो तो बहुत ही कॉमन है। ये देखिए कॉमन पॉइंट क्या है, एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल, ये तो कॉमन है स्टूडेंट्स, एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल। यहाँ तक हमने सिंपल लिपिड्स में भी यही देखा था। ये सिंपल लिपिड्स में मात्र अल्कोहल और फैटी एसिड से होते हैं। कंपाउंड लिपिड में क्या होता है, लिपिड का मतलब ये एस्टरिफिकेशन ऑफ व्हाट फैटी एसिड्स, याद रखिए बेटा, एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स होता है। कंपाउंड लिपिड्स में देखिए कंपाउंड लिपिड्स कंसिस्ट ऑफ व्हाट एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल विद एडिशनल ग्रुप्स, ये याद रखिए, सम एडिशनल ग्रुप्स विल बी देयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। अब देखते हैं बेस्ड ऑन दिस, ये एडिशनल ग्रुप जो है ना स्टूडेंट्स, ये तो कॉमन है लिपिड में। देखिए लिपिड बोले तो ये होना ही होना है स्टूडेंट, राइट राइट। अगर कुछ एडिशनल ग्रुप होता है फैटी एसिड राइट और अल्कोहल के बावजूद कुछ एडिशनल ग्रुप होता है, तो किस तरह का एडिशनल ग्रुप होता है स्टूडेंट्स, बेस्ड ऑन दैट राइट। सो फिर हम लिपिड्स को कंपाउंड लिपिड्स को पुनः डिवाइड करते हैं, याद रखिए बेटा, बहुत ही सिंपल है। अब देखिए फास्फोलिपिड्स, ये पहला जो कैटेगरी है ना स्टूडेंट्स, यही हमारे सिलेबस में है, यही हमारे बुक में है, याद रखिए फास्फोलिपिड्स। अब फास्फोलिपिड्स में क्या होगा स्टूडेंट्स, फास्फोलिपिड्स में देखिए फैटी एसिड तो होगा ही होगा, नो डाउट फैटी एसिड है। अल्कोहल है स्टूडेंट्स, यस अल्कोहल है। अल्कोहल के साथ आपको फास्फेट ग्रुप भी देखने को मिलेगा स्टूडेंट, याद रखिए, इसीलिए इसको क्या कहा गया, ये लिपिड्स को फास्फोलिपिड्स। अब देख सकते हो फैटी एसिड से ग्लिसरॉल है, ये तो अपना सिंपल लिपिड है, राइट राइट। फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ क्या आया, फास्फेट आया, तो इस तरह से क्या बना, कंपाउंड लिपिड फास्फोलिपिड बन गया स्टूडेंट्स। ये फास्फोलिपिड कहाँ पर है हमारे शरीर में, उनका बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बहुत जरूरी है। फास्फोलिपिड्स आर जनरली फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन स्टूडेंट, राइट। देखिए आप लेसिथिन नाम का एक फास्फोलिपिड बहुत ही फेमस है, याद रखिए, आपके बुक में टेक्स्ट बुक में इसका स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है। देखिए आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो दिख रहा है ना आपको, ये क्या है स्टूडेंट्स, ये देखिए ये है फैटी एसिड है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये भी है फैटी एसिड एस्टरिफिकेशन हो गया, आप देख सकते हो स्टूडेंट्स। यहाँ पर ये जो आप दिख रहा है ना स्टूडेंट, ये है आपका एक्चुअली क्या, ये है फास्फेट ग्रुप डी स्टूडेंट्स, राइट राइट। सो फास्फेट ग्रुप ऐड हो गया कि नहीं बताइए, इसमें बहुत ही सिंपल है बेटा, याद रखिए। और ये जो दिख रहा है ना आपको, ये है कोलिन डी स्टूडेंट्स, क्या है कोलिन। सो ये याद रखना है आपको। देखिए ये तो है ग्लिसरॉल, हाँ, फैटी एसिड भी आए, हाँ, अभी एडिशनल ग्रुप में क्या है स्टूडेंट्स, फास्फेट आया और उसके साथ एक कोलिन भी आया, तो ये क्या बन गया स्टूडेंट्स, ये है फास्फोलिपिड बन गया। एग्जांपल क्या है, लेसिथिन है स्टूडेंट्स। लेसिथिन कहाँ पर देखने को मिलेगा आपको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखने को मिलता है। देखिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है स्टूडेंट, राइट, आप देख सकते हो, बहुत ही सिंपल है। अब देखिए फास्फोलिपिड के साथ साथ अगर फास्फेट ग्रुप है तो फास्फोलिपिड। देखिए कंपाउंड लिपिड्स में और कुछ दूसरे टाइप से स्टूडेंट्स, याद रखिए, थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगा आपको। ये ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल है, कार्बोहाइड्रेट होता है यहाँ पर। दूसरा देखिए लाइपोप्रोटीन्स है स्टूडेंट्स, राइट, लिपिड्स प्लस प्रोटीन्स। अगर लिपिड्स के साथ प्रोटीन्स आता है तो लाइपोप्रोटीन्स। फिर बाद में कोई कलर्ड सब्सटेंस प्लस लिपिड्स आता है तो क्रोमोलिपिड्स कहते हैं स्टूडेंट्स, याद रखिए, कम से कम याद रखिए बेटा। अब देखिए ग्लाइकोलिपिड्स में क्या होता है, दे कंटेन व्हाट फैटी एसिड, ये तो कॉमन है स्टूडेंट। अल्कोहल, ये तो कॉमन है बेटा, राइट राइट। अब देखिए स्पिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पिंगोसिन, राइट। अल्कोहल कौन सा है, अल्कोहल स्पिंगोसिन है, याद रखिए, राइट राइट। अब इसके साथ क्या आया, यहाँ पर शुगर आया स्टूडेंट, राइट राइट। देखिए एडिशनल क्या आया, फास्फोलिपिड में एडिशनल क्या था, एडिशनल क्या था, फैटी एसिड और अल्कोहल के साथ वहाँ पर क्या था, एडिशनल फास्फेट ग्रुप था। यहाँ पर देखिए क्या है, फैटी एसिड के साथ अल्कोहल जो है वो ठीक है, अल्कोहल यू नो, ये सिंपल अल्कोहल कौन सा है, स्पिंगोसिन है, याद रखिए, स्पिंगोसिन, कम से कम अल्कोहल तो याद रखिए। फैटी एसिड भी है, अल्कोहल भी है। उसके बाद क्या है, कार्बोहाइड्रेट है स्टूडेंट्स, कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, गैलेक्टोज है, याद रखिए बेटा, बहुत ही सिंपल है। तो इस तरह से क्या हुआ, लिपिड के साथ यू नो कार्बोहाइड्रेट भी आए तो उसको हम क्या कहेंगे, ग्लाइकोलिपिड कहेंगे, याद रखिए। कहाँ पर पाए जाते, राइट, देखिए शुगर रिप्लेस व्हाट, वन फैटी एसिड मॉलिक्यूल। ये जो शुगर है ना स्टूडेंट, एक फैटी एसिड मॉलिक्यूल को रिप्लेस करेगा। ग्लाइकोलिपिड्स आर प्रेजेंट इन मायलिन शीथ ऑफ नर्व फाइबर स्टूडेंट, राइट, बहुत ही सिंपल है। आपने ये नर्वस टिश्यू में देख लिया स्टूडेंट्स, राइट, कुछ न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स आर कवर्ड बाय व्हाट, मायलिन शीथ, राइट। जो मायलिन शीथ होता है ना स्टूडेंट्स, मायलिन शीथ ग्लाइकोलिपिड्स के लिए एग्जांपल है, याद रखिए। एंड आउटर सरफेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन ऑफ व्हाट, क्लोरोप्लास्ट स्टूडेंट। आउटर सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट में भी क्या होते हैं, ये ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, याद रखिए। लाइपोप्रोटीन्स कहाँ पर है, देखिए लाइपोप्रोटीन्स में क्या है, लिपिड्स तो है स्टूडेंट, याद रखिए, और मेनली फास्फोलिपिड्स, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये इंपॉर्टेंट है लाइपोप्रोटीन्स में।
लिपिड्स किस रूप में होते हैं, फास्फोलिपिड्स रूप में। और प्रोटीन्स है स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल है, अगर मान के चलिए लिपिड्स और प्रोटीन्स का कॉम्बिनेशन होता है स्टूडेंट्स, तो उनको हम क्या कहते हैं, लाइपोप्रोटीन्स कहते हैं, याद रखिए, बहुत ही सिंपल है बेटा, याद रखिए, राइट राइट। तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं स्टूडेंट्स, ये देखिए मेम्ब्रेन्स में पाए जाते हैं। मेम्ब्रेन्स आर कंपोज्ड ऑफ व्हाट, लाइपोप्रोटीन स्टूडेंट्स, याद रखिए। लास्ट में देखिए क्रोमोलिपिड्स, यहाँ पर क्या होता है, कुछ पिगमेंट्स स्टूडेंट्स, राइट राइट। कौन से पिगमेंट्स, कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स, राइट। सो दे आर फाउंड एसोसिएटेड विद व्हाट, दे आर फाउंड एसोसिएटेड विद लिपिड स्टूडेंट्स, राइट। उनको हम क्या कहते हैं, क्रोमोलिपिड्स कहते हैं स्टूडेंट्स। आप देख सकते हो कैरोटीन एग्जाम्पल है, विटामिन ए एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स। इसके साथ हमने कंपाउंड लिपिड्स देख लिया। अब लास्ट में देख सकते हो स्टूडेंट्स डिराइव्ड लिपिड्स है, क्या है, थर्ड कैटेगरी ऑफ लिपिड्स देखिए, डिराइव्ड लिपिड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। दीज आर व्हाट, दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ, राइट, हाइड्रोलिसिस ऑफ सिंपल लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स का हम हाइड्रोलिसिस करने के बाद हमको जो प्रोडक्ट आते हैं ना स्टूडेंट्स, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, डिराइव्ड लिपिड्स कहते हैं। बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स, राइट राइट, बहुत ही सिंपल है। अब देखिए दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सिंपल लिपिड्स एंड कंपाउंड लिपिड्स। कंपाउंड लिपिड और सिंपल लिपिड का जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं स्टूडेंट्स, ब्रेक डाउन करते हैं, तो जो कंपोनेंट्स आते हैं ना, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, डिराइव्ड लिपिड्स कहते हैं, याद रखिए बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिराइव्ड लिपिड्स में स्टेरॉइड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल स्टेरॉइड से याद रखिए। स्टेरॉइड में मोस्ट कॉमन जो स्टेरॉइड होता है ना, उनको हम कहते हैं स्टूडेंट्स स्टेरॉल्स, राइट। सो स्टेरॉल में मोस्ट कॉमन जो स्टेरॉल है ना, उसको हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉल। तो डिराइव्ड लिपिड्स के लिए एक ही एग्जांपल याद रखिए, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या है, स्टेरॉइड है स्टूडेंट, राइट, ये याद रखिए। स्टेरॉइड में भी मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टेरॉइड इज कॉल्ड स्टेरॉल, और स्टेरॉल में मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टेरॉल इज कॉल्ड व्हाट, कोलेस्ट्रॉल, याद रखिए। कोलेस्ट्रॉल का स्पेशलिटी आप देखें तो स्टूडेंट्स, मोस्ट अबंडेंट स्टेरॉइड इन द एनिमल टिश्यू, याद रखिए। इट इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ व्हाट, एनिमल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये है कोलेस्ट्रॉल का फार्मूला बेटा, याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कोलेस्ट्रॉल का फार्मूला है स्टूडेंट, याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट राइट। अब देखिए दूसरे अगर एग्जाम्पल आप कोलेस्ट्रॉल के साथ देखना चाहे तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है स्टूडेंट्स, क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या है, ये भी एक तरह के डिराइव्ड लिपिड्स है स्टूडेंट्स, याद रखिए। इट इज ए ग्रुप ऑफ हार्मोन लाइक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स which function as messenger substances between cell. They are derived from arachidonic acid student and related C20 fatty acid. तो ये सिंपली याद रखिए, कोलेस्ट्रॉल और प्रोस्टाग्लैंडिन्स दो एग्जाम्पल है, किसके लिए, डिराइव्ड लिपिड्स के लिए स्टूडेंट्स, राइट। इसके साथ हमारा ये बायोमोलिक्यूल्स, आई मीन लिपिड्स, यहाँ पर कंप्लीट होते हैं स्टूडेंट्स, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग ट्यूरिटो, कीप वॉचिंग ट्यूरिटो स्टूडेंट, थैंक यू।